Now, today we will talk of the new topic, area under the curve. As the name suggests, we have to find the area which is under the curve and enclosed either between the x-axis or the y-axis or the area enclosed between two curves. For example, let's say we have a curve y is equal to fx. We want to find the area under this curve and let's say the x-axis. Let's say x is equal to a से लेके x is equal to b तक इस कर्व के नीचे area enclosed है. Is what we will try to find. This is what we mean by area under the curve. जैसे let's say we have something of this sort. Let's say we have a curve. Let's say ये है curve and we want to find the area enclosed by the curve and the let's say y-axis. Let's say from y is equal to b and y is equal to a. This is the curve y is equal to fx. Let's say we have another case. We have a curve. Let's say we have a curve like this and a curve like this. Now what is the area enclosed between these two curves and the x-axis? From x is equal to let's say a to x is equal to b. So this is the area that is enclosed between them. Another case could be, let's say we have something of this sort. Let's say what is the area enclosed between the two curves. Let's say this is the area enclosed between the two curves. Let's say this is point x is equal to b and let's say this is point x is equal to a. तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें the area is not uniform, the curvature is changing throughout and therefore we have to find the area under this curve either enclosed between the x-axis or y-axis or some line or between area between two curves. इस टाइप के questions we'll be dealing and what we'll be using is obviously integration. As the name suggests, integration means summation. So what we'll be doing, we'll be summing up the areas. छोटे छोटे areas का integration के through हम area निकालेंगे by summing small areas. इसमें concept जो use होगा वो integration का होगा, that is definite integration. Definite integration का concept use होगा to find the area of the curve or rather area under the curve. Now we'll talk of the different cases of the bounded area. That is, what could be the different cases that we can encounter? Different cases of let's say the bounded area. क्या क्या situations हम encounter कर सकते हैं, किस टाइप के questions हम लोग को मिल सकते हैं जिसमें हमको area निकालना है. So let's say we take the first case. तो फर्स्ट केस क्या होगा, से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस और एक कर्व है लेट्स से y इज इक्वल टू fx एंड सिंपली हमें इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है विच इज इंक्लोज्ड बाय द x एक्सिस और किस पॉइंट से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b. मतलब एक ये x इक्वल टू a x इक्वल टू b लाइन नहीं है, दिस x इज इक्वल टू a मीन्स दिस लाइन इंक्लोज्ड बिटवीन दिस लाइन एंड x इज इक्वल टू b मतलब ये लाइन. तो कर्व ये दोनों लाइंस और x एक्सिस इनके बीच का एरिया ये हमें निकालना है. तो लेट्स से दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज y इज इक्वल टू fx. तो इंटीग्रेशन हमें बेसिकली जो हम इंटीग्रेट करते हैं वो क्या बताता है, समेशन ऑफ एरियाज. तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पहली चीज तो ये हम लोग को देखनी है कि जो हमारा कर्व से एरिया बन रहा है वो अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है या टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस है या टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है. क्यों, उससे हम क्योंकि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमको एल्जेब्राइक सम देता है एरियाज का. एल्जेब्राइक सम मतलब साइन के साथ एरिया देता है, साइन के साथ वैल्यू देता है और एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं.
तो वील हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा एरिया पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के नीचे है, फॉर एग्जांपल अभी वील टेक दोस केसेस, पर अभी इस केस में हम लोग का जो एरिया आ रहा है दैट इज इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस, तो इसमें हमें कोई इश्यूज नहीं, पूरा एरिया पॉजिटिव होगा। तो एरिया क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी मीन्स this represents area under the curve y is equal to fx from a to b. Now let's take the second case. Let's say we have something of this sort. Let's say this is y axis and this is x axis and this is origin. Let's say we have a curve of this sort and this is, let's say, y is equal to fx. And now we are interested in finding the area bounded by this curve and the y axis. तो यानी ये एरिया हम लोग वी आर लुकिंग फॉर। नाउ ये एरिया क्या है, ये एरिया इज टू द राइट ऑफ द y एक्सिस, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, लेट्स से दिस इज फ्रॉम लाइन y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू a, ये हो गई y इज इक्वल टू b लाइन। तो ये एरिया हमें निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, a वुड बी from a to b fy dy, or rather we can write this as x dy, we can write this as x dy, और ये क्या लिख सकते हैं, a से b y dx। मतलब we'll have to write the function in terms of x, तो हमें एरिया ये वाला मिल जाएगा। Now let's say if we have something of this sort, अगर हमारे को इस तरीके का कुछ फिगर मिलता है, let's say ये x axis है, this is x axis and this is y axis, and let's say our curve is below x axis, y is equal to fx, and we have to find the area between x is equal to a and x is equal to b line। ये हमारी लाइन हो गई एंड ये लाइन हो गई, तो एरिया क्या हुआ, ये एरिया हुआ। दिस इज द बाउंडेड एरिया बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, द कर्व एंड द x एक्सिस। नाउ इस केस में पूरा का पूरा एरिया इज बिलो द x एक्सिस। तो ये अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो वो तो हमें अलजेब्राइक सम देगा, अलजेब्राइक सम देगा मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब हमारा कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे जैसे फर्स्ट केस में निकाला, बट दिस टाइम वील यूज अ मॉड टू मेक द एरिया पॉजिटिव, या इसको आप a से b y dx भी लिख सकते हैं। तो अगर एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस तो वो पार्ट में हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें हम मॉड लगाएंगे। सिमिलरली लेट्स से वी हैव दिस केस, फोर्थ केस, let's say we have something of this sort. Suppose this is y axis, this is x axis, and let's say we have a curve of, let's say, this sort। तो ये हो गया y is equal to fx, and we need to find out the area between y is equal to b and y is equal to a। तो ये एरिया आ जाएगा, this is the required area which is bounded by the lines y is equal to a and y is equal to b, the curve and the y axis। अब ये पूरा कर्व to the left of y axis है, तो ये एरिया will be considered negative। अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो अलजेब्राइक वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, बट एरिया इज नेवर नेगेटिव। व्हाट वील डू इज वील यूज अ मॉड a to b x dy and we'll use a mod। मॉड लगाते ही एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस तो वही रहेगा, वैल्यू तो वही रहेगी, बस पॉजिटिव कर देगा ये। तो वील हैव टू बी वेरी अवेयर कि हमारा जो कर्व बन रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस है या अबव एक्स एक्सिस है, जो टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस है या टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। स्पेशली जो एरिया बाउंड हो रहा है वो कहाँ पर है, बिलो एक्स एक्सिस है, अबव एक्स एक्सिस, टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस है, टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। नाउ वी टेक द नेक्स्ट केस, एंड नेक्स्ट केस में क्या होगा, पहले तो ये समझिए कि जो चारों केसेस हमने लिए हैं इसमें जो बाउंडेड एरिया है वो या तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है
या पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, या पूरा पूरा टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है, या पूरा लेफ्ट टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस है. एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है कर्व. बट नाउ केस जिसमें हो सकता है हमारा कर्व एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो. तो एक्सिस को अगर क्रॉस करेगा तो व्हाट कुड बी द सिचुएशन. लेट्स से वी हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. लेट्स से द कर्व इज ऑफ दिस सॉर्ट. हमारा कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड लेट्स से x इज इक्वल टू b. तो अब एरिया बाउंडेड क्या होगा. दिस वुड बी द बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, एंड लेट्स से ये पॉइंट C है जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो इस बार क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है A1, लेट्स से दिस एरिया इज A1 एंड दिस एरिया इज A2. तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया वुड बी A1 प्लस A2. बट जब हम A1 निकालेंगे तो ये तो बहुत आसान है. द कर्व इज इंटायरली, द बाउंडेड एरिया इज इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस. तो यहां क्या होगा, A से लेके C तक fx dx नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जब हम C से लेट से B तक जाएंगे fx dx, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी. अब ये नेगेटिव आएगी पर एरिया तो नेगेटिव नहीं होता, हमें तो ये दोनों एरिया ऐड करने हैं, जबकि जो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू देगा वो माइनस में देगा. तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों एरियाज, जो कि सही नहीं है. व्हाट विल डू, विल यूज अ मॉड इन दिस एरिया. तो अब क्या हो गया, जो A2 एरिया वो भी पॉजिटिव हो गया, A1 भी पॉजिटिव हो गया और दोनों एरिया ऐड हो गए. तो जब हमारा कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट से जितना एरिया बिलो एक्स एक्सिस है उसको हमें इंटीग्रेट करना है और उसमें मॉड लगाना है, एंड देन वील ऐड द टू एरियाज. नाउ वी टेक द next option and now we'll talk of area between the two curves. Now what could be the option, let's say this is, let's say x axis and y axis, and we have two curves. let's say एक कर्व ये है and let's say एक कर्व ऐसे है जिसने फर्स्ट कर्व को इंटरसेक्ट किया. तो let's say this is y is equal to fx and let's say this is y is equal to gx. तो जो हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है एंड द एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस. तो नाउ अब इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया वो तो ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, एंड जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी के बीच में एरिया बाउंडेड है. तो लेट्स से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी लाइन के बीच में है. तो व्हाट विल डू इज, तो एरिया bounded between the curves y is equal to fx and y is equal to gx such that, check करिए, gx is always greater than or equal to fx in a से लेके b. A से B के बीच में gx का आउटपुट fx से हर पॉइंट पे ज्यादा है. तो एरिया विल बी गिवन बाय फ्रॉम A to B gx dx. ये क्या बता देगा, दिस वुड टेल यू द एरिया बाउंडेड बाय द अबव कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू a and x इज इक्वल टू b, एंड माइनस एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू fx, a से b fx dx. इसके नीचे का एरिया क्या होगा, इसके नीचे का एरिया ये होगा, लेट्स से ये वाला. तो अगर रेड कलर वाला जो एरिया हमने लिया है उसमें से ये ग्रीन कलर वाला एरिया अगर रिमूव कर देंगे तो कौन सा मिलेगा, जो ब्लैक कलर वाला एरिया हमारा है एंड विच इज द रिक्वायर्ड एरिया. तो ये एरिया क्या आ जाएगा, वी कैन कंबाइन दिस. लेट्स से वी हैव, ये हो जाएगा from A to B gx minus fx dx. This would be the required area. And important point is, ये एरिया किसके बीच में, x is equal to a, लाइन x is equal to a and x is equal to b. and ये लाइन्स कैसे आई हैं,
these have come from point of intersection of these two curves. जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करे हैं उसके x कोऑर्डिनेट्स हैं ये. तो दिस इज द केस व्हेन द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लेट्स टेक द नेक्स्ट ऑप्शन. लेट्स से द कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. द कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और फिर उनके बीच का एरिया निकालना है. लेट्स से वी हैव अ कर्व लाइक दिस एंड लेट्स से वी हैव अ कर्व अनदर कर्व दिस. कोई जरूरी नहीं वो पैरेलल कुछ भी हो, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. So let's say this is curve y is equal to gx and let's say this is curve y is equal to fx, and we have to find the area between the two curves, between the points, or rather between the line x is equal to a and x is equal to b. तो जो required area होगा वो ये होगा. This is the area between the two curves. तो obviously area between the two curves y is equal to fx and y is equal to gx such that gx is greater than fx for all x between a and b. Throughout a and b fx का आउटपुट gx से कम है. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? फ्रॉम a to b gx dx. ये क्या होगा? दिस वुड बी द एरिया अंडर द कर्व gx and the x-axis and the line x is equal to a and x is equal to b, and we'll subtract from this the area under the curve y is equal to fx between the lines x is equal to a and x is equal to b. तो वो कौन सा एरिया होगा? लेट्स से ये वाला एरिया. तो जो रेड कलर वाला एरिया है उसमें से ग्रीन कलर वाला एरिया अगर रिमूव करेंगे तो कौन सा बचेगा? जो ब्लैक कलर वाला एरिया है. तो दिस विल टेल यू द रिक्वायर्ड एरिया. तो दिस विल बी इक्वल टू a से b gx माइनस fx dx. This would be the required area. Now another case could be, let's take the next case. Let's say we have something of this sort. Let's say this is y-axis and let's say this is x-axis, and we have a curve like, let's say we have curve like this. ये है y is equal to fx and this is y is equal to let's say gx, and we want to find the area between the point x is equal to a and let's say this is x is equal to b, and this is the point x is equal to c, which is the point of intersection of the two curves. तो इस बार रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ये एरिया होगा. तो now in this case area between the two curves y is equal to fx and y is equal to gx. लेकिन इस बार क्या है? ना fx थ्रू आउट gx से बड़ा है ना gx थ्रू आउट fx से बड़ा है. मतलब कुछ पोर्शन में gx इज ग्रेटर देन fx और कुछ पोर्शन में fx इज ग्रेटर देन gx. मतलब if x lies between a to c, we find that gx is greater than fx, and between the intervals c से b fx is greater than equal to gx. तो जब एरिया निकालेंगे तो दिस लेट्स से दिस एरिया इज a1 एंड दिस एरिया इज a2. तो जब a1 a2 होगा तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? द रिक्वायर्ड एरिया वुड बी प्लस a2. तो a1 प्लस a2 कैसे आएगा? जब a1 निकालेंगे तो gx बड़ा है fx से, तो क्या रिक्वायर्ड एरिया होगा? एज वी हैव प्रूव्ड अर्लियर, a से c gx माइनस fx dx प्लस दूसरा a2 कैसे आएगा? फ्रॉम c टू b. इस बार fx gx से बड़ा है तो fx माइनस gx. तो दो पार्ट्स में हम इसको सॉल्व करके ऐड कर देंगे. दिस वुड बी द रिक्वायर्ड एरिया. तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. तो अब टू कर्व्स में हमने क्या केसेस देखे? दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पर वन ऑफ द कर्व इज थ्रू आउट ग्रेटर देन द सेकेंड कर्व. जो केस 6 था ये वाला केस. सेकेंड केस था वन ऑफ द कर्व इज थ्रू आउट ग्रेटर देन द सेकेंड कर्व बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर.
और तीसरा केस क्या था, बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर and in some portion one curve is greater than the other portion the other curve is greater than the first one. तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो these are the cases जो possible cases हैं which we can see, जो एरिया अंडर द कर्व में हम लोग इनकाउंटर करेंगे. Now we'll talk of sketching the curves. अब क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको कर्व है जो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है. एक रफ स्केच तो हर हालत में बनाना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक स्केच नहीं बनाएंगे हमको ये नहीं पता लगेगा कि वो कर्व हमारा अबव एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस है, उसका नेचर क्या है, कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस को तो क्रॉस नहीं कर रहा है. तो एक रफ स्केच हमको बनाना बहुत ज़रूरी है. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर हम लोग को बेसिक ग्राफ बनाने के रूल्स पता हूँ. तो उसके कुछ रूल्स हैं, एक सर्टेन ऑर्डर में अगर हम उन्हें फॉलो करें तो हम ग्राफ्स को एक रफ स्केच तो बना ही सकते हैं. तो पहला पॉइंट है इज वी हैव टू लुक फॉर सिमेट्री, कि हमारा ग्राफ सिमेट्रिकल है कि नहीं. अब सिमेट्रिकल वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, ओरिजिन के अबाउट भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो सकता है. तो कुछ भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम 2-3 जो पर्टिकुलर जनरल केसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. कि अगर हमारा कर्व अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब अगर हम एक्स एक्सिस अगर वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम आधा ग्राफ अगर बनाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन करके एक्स एक्सिस में उसका दूसरा पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस. तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर नेचर होगा वही एग्जैक्टली उसका शेप नीचे होगा एक्स एक्सिस के, एंड वाइस वर्सा. तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम क्या करें, हम चेक करें कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें y की जो पावर है दैट हैज़ टू बी इवन. या फिर हम क्या करें, हमारे कर्व में y की जगह -y सब्सटीट्यूट करें, और अगर हमारे कर्व में वापस हमें अपना कर्व वापस मिल जाता है तो यानी वो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है. फॉर एग्जाम्पल अगर y² = 4x है तो चेक करिए y का पावर क्या है, इवन. यहाँ चेक करिए x² + y² = 4, y की पावर क्या है, इवन. यहाँ चेक करिए y की पावर इवन. तो हम स्ट्रेट में पता लगा सकते हैं. अगर इससे नहीं करना तो y की जगह -y रखेंगे तो क्या होगा, -y का होल स्क्वायर = 4x. तो आर वी गेटिंग बैक आवर ओरिजिनल इक्वेशन, यस y² = 4x ही आएगा. x² + -y का होल स्क्वायर इज 4, तो क्या आएगा, x² + y² = 4. वही इक्वेशन वापस आ गई. कब, जब y की जगह -y रखा. तो ये कर्व हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा. तो जो भी हम कर्व बनाएंगे अबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्सिस, बस उसका रिफ्लेक्शन कर देंगे एक्स एक्सिस में टू गेट द अदर पार्ट. नाउ सिमिलरली अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस if the power of x in the equation of the curve is even. या फिर हम फंक्शन जो हमें कर्व की इक्वेशन दी है उसमें x की जगह -x सब्सटीट्यूट करें और हमको वापस अपना कर्व की इक्वेशन मिल जाए तो वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगी. फॉर एग्जांपल x² = 4 है, x की पावर क्या है, इवन है. x² + y² = 4 में x की पावर इवन है. x² / 4 + y² / 2 = x पावर इवन है. तो स्ट्रेट में हम कह सकते हैं ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है. या x की जगह अगर हम -x रखें तो क्या होगा, we'll get back our original equation x² = 4ay. x² की जगह -x रखें तो -x का होल स्क्वायर प्लस y² is 4, which is x² + y² = 4. एंड सिमिलरली x की जगह -x रखें तो -x का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y² / 2 1 है, तो क्या आएगा, x² / 4 प्लस y² / 2 = 1, यानी ओरिजिनल फंक्शन आ गया हमारा. तो यानी ये सब क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. नाउ इफ वी, अब ये जो दो केसेस हमने पढ़े हैं इनको ज़रा ड्रॉ करें. तो इफ़ यू नो दिस इज़ अ पैराबोला, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो बेसिक जो 11th में हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये जो पढ़ते हैं इनके बेसिक ग्राफ्स तो हम लोग को एटलीस्ट आने ही चाहिए. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये क्या होता है, let's say this is the graph, let's say this is the graph.
तो इसके ग्राफ्स क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज अ हॉरिजॉन्टल पैराबोला राइट फेसिंग। चेक करिए ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। चेक करिए सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ये एग्जैक्टली इसका रिफ्लेक्शन है, हर पॉइंट एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है, दिस वुड बी अ सर्कल। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है ही, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। सिमिलरली इफ वी टेक दिस केस तो ये इलिप्स है, ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अब अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई लें तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी शेप कैसे होगी, दिस वुड बी एक्स एक्सिस, दिस वुड बी वाई एक्सिस। ये क्या शेप होगी, दिस इज दिस। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। लेट्स टेक दिस केस, ये अगेन सर्कल है, तो ये विद सेंटर ओरिजिन है, ये दिस इज सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। ये पॉइंट देखिए एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है, दीज पॉइंट्स आर व्हाट, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ये सिमेट्रिकल है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सिमिलरली इफ वी टेक दिस केस, ये इलिप्स है, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन हम बता सकते हैं कि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो अगर आधा ग्राफ भी पता लग गया तो उसको कंप्लीट कर लेंगे बाय रिफ्लेक्टिंग इट। नाउ थर्ड केस देखते हैं, अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन इफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x की जगह -x, y की जगह -y और वो xy मतलब फंक्शन वही रिपीट हो जाए जो ओरिजिनल फंक्शन था। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, x की जगह -x रखा, y की जगह -y रखा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वापस वही फंक्शन आ गया। तो ये कर्व क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। लेट्स से वी टेक दिस केस, y की जगह -y रखा, x की जगह -x रखा, तो क्या आ गया, -y इज इक्वल टू -x3, विच मीन्स y इज इक्वल टू x3। ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ गया, तो राधा ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन आ गई। तो फिर ये क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। तो इफ वी ड्रॉ दिस, इफ वी ड्रॉ दीज ग्राफ्स तो क्या होगा, ये तो हमारा एक सर्कल होगा। तो ये सर्कल जो है क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो एवरी पॉइंट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कोई भी पॉइंट ले लें, एवरी पॉइंट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या है, ये है। तो एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। रिफ्लेक्शन, एवरी पॉइंट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द ओरिजिन और वो उसी ग्राफ पे आएगा। तो ये क्या हमारा हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट वो सिमेट्री शो करेगा। तो सबसे पहले हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्री। अगर हमें ग्राफ पता है तो देन इट इज़ ओके, फिर तो ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमें स्केच करना है स्टेप बाय स्टेप तो फिर हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्री। तो सिमेट्री में 3 सिमेट्रीज हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। ये चेक करके थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है हमको। नेक्स्ट वी फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस, कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करेगा और वो क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, उसी हिसाब से हमारा साइन आएगा एरिया का। जो एक्स एक्सिस के नीचे पार्ट ऑफ ग्राफ होगा उसका एरिया नेगेटिव आएगा, वो पार्ट ऑफ ग्राफ जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में आएगा उसका एरिया नेगेटिव आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें कर्व के, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें पता लगाना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है कर्व, जहाँ पे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो विल पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2। मतलब दिस कर्व इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट प्लस माइनस 2। सिमिलरली ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, कोई भी कर्व वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक्स वाई को 0 रख देंगे तो क्या आएगा, सॉरी एक्स को 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज वाई क्या आएगा प्लस माइनस 2। तो हमारा कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वी कैन फाइंड आउट दिस कि एक्स एक्सिस को -2 पे और +2 पे काट रहा है और वाई एक्सिस को +2 और -2 पे काट रहा है। तो इसका मतलब अगर हम अब बनाएं तो हमारा कर्व कुछ इस किस्म से बनता है। ये तो सर्कल है, तो ये सर्कल क्या है, इन पॉइंट से पास कर रहा है, इन पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमको ये पता लग गया कि ये जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो अगर इसका मेरे को एरिया निकालना होगा तो दिस वुड बी व्हाट, ये तो नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है दिस इज अबव एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, इसका एरिया पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है इस पोर्शन का, तो दिस पोर्शन क्या होगा, अगर अलजेब्रिक एरिया लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में आ रहा है। सिमिलरली ये पोर्शन अगर देखूंगा तो इसको आप चाहे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस आ रहा है, तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ मुझे मॉड लगाना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन विद एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें फिर हेल्प करता है कि एरिया पता लगाने में कि वो पॉजिटिव है अलजेब्रिक एरिया या नेगेटिव है, उसी हिसाब से हम उसमें मॉड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमें dy बाई डी एक्स निकाल लेना चाहिए अपने कर्व का, और इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लेना चाहिए कि किस इंटरवल में हमारा कर्व इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, एंड इंपॉर्टेंटली कहाँ स्टेशनरी पॉइंट्स है। स्टेशनरी पॉइंट्स वहाँ होंगे जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो इससे भी हमें कर्व में स्केचिंग में थोड़ा सा हेल्प मिलता है कि कहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे उसका स्लोप 0 हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बन जाएगा। एंड नेक्स्ट इज कि हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें अपने कर्व का, उससे हमें इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी मिलती है, मतलब कहाँ पे कर्व कॉन्केव है, कहाँ कर्व कॉन्वेक्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स वुड बी 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वुड बी 6x, तो 6x 0, x इक्वल्स टू 0 आए, और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ कर्व कॉन्केविटी अपनी चेंज करता है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनता है, ऐसे बनता है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। चेक करिए x इज इक्वल टू 0, दिस इज पॉइंट x इज इक्वल टू 0, इस पे अपना देखिए इसने कॉन्केविटी चेंज किया है फ्रॉम कॉन्केव डाउनवर्ड्स टू कॉन्केव अपवर्ड्स। तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है कि कर्व का नेचर कैसे होगा पता लगा लें। एंड लास्टली हम लोग चेक करते हैं कि जो डोमेन ऑफ द कर्व है, जो भी फंक्शन या कर्व है उसकी डोमेन, मतलब x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे वो y की वैल्यू क्या मिल रही है, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे y क्या नेचर शो कर रहा है, या y टेंस टू इन्फिनिटी पे x क्या हो रहा है, या y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है। इसको निकाल लेने से भी आइडिया लगता है कि कर्व बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, उस हिसाब से हम अपना कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ रफ गाइड कि हम कर्व्स कैसे बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर 11th के टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो उसमें जो बेसिक ग्राफ्स हैं वो आपको आने ही चाहिए। नाउ वी टॉक ऑफ सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स जो बहुत ज़्यादा हम इनकाउंटर करते हैं क्वेश्चंस में। अगर इनके अलावा कोई ग्राफ्स आते देन यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स जो हमने डिस्कस किए कर्व स्केचिंग के। अगर ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स आते हैं तो यू कैन वेरी वेल
स्ट्रेट अवे ड्रॉ द ग्राफ्स विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू द प्रोसेस, वो फिर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले केस लेते हैं पैराबोलास के। तो लेट्स से फर्स्ट टाइप क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ, मतलब दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा, दिस इज राइट फेसिंग ग्राफ, राइट फेसिंग पैराबोला, जिसका ये फोकस हो जाता है a,0, वर्टेक्स हो जाता है 0 0, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। नाउ अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो हमारा कर्व क्या बनता है, दिस वुड बी देन दिस वे, this would be, this is y axis, this is x axis, this is -a,0। नेक्स्ट अगर हमारा पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, दिस इज द केसेस जो स्टैंडर्ड हैं, जिसमें यू डोंट हैव टू फॉलो द अबव प्रोसेस, ये स्ट्रेट अवे आप पहचान सकते हो। तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज दिस कर्व, एंड यू कैन वेरी वेल, जो हमने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए वो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ x जो है x स्क्वायर है, इवन पावर ऑफ x है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। देखिए ग्राफ भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। यहाँ देखिए y की पावर इवन है, तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस हैं ग्राफ्स। Let's say now we take the case of x square is equal to -4ay, तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ would be this would be y axis, this would be x axis, और ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा, अब इन सारे केसेस में क्या था, योर वर्टेक्स वाज, इन सारे केसेस में क्या था, द वर्टेक्स वाज 0 0। अब अगर वर्टेक्स 0 0 ना हो तो, जैसे y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 4ax माइनस अल्फा, वेर अल्फा बीटा क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई। तो ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, दिस वुड बी द केस, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, यहाँ कहीं पैराबोला कहीं भी पॉइंट हो सकता है, अल्फा बीटा डिपेंड्स कहाँ होगा, तो कर्व आपका कैसे होगा, द कर्व वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा कुड बी एनीवेयर, अल्फा बीटा डिपेंड्स यहाँ पे जो भी अल्फा बीटा की वैल्यू है उस हिसाब से, this would be the curve। अगर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax माइनस अल्फा, देन योर कर्व वुड बी लेफ्ट फेसिंग। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो अल्फा बीटा कहाँ पे, लेट से कहीं भी है अल्फा बीटा, लेट से यही पॉइंट है अल्फा बीटा, किसी भी कोऑर्डिनेट में अल्फा बीटा हो सकता है। तो दिस टाइम द कर्व वुड बी दिस वे। Next, the same goes with when we have x minus alpha का whole square, 4a y minus beta, and the last case is x minus alpha whole square minus 4a y minus beta। इनके लिए ग्राफ्स का नेचर क्या होगा, this would be its graph, और ये हम इसका बना लेते हैं। तो this would be, कहीं भी अल्फा बीटा कहीं भी हो सकता है, लेट्स से ये अल्फा बीटा है, तो ये क्या होगा, अपवर्ड फेसिंग, और लेट्स से अल्फा बीटा कहीं भी है, दिस इज अल्फा बीटा, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, बट दिस वुड बी डाउनवर्ड फेसिंग। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द पैराबोलास। Now we take the case of, let's say, circles। तो जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर 0 0 है,
तो वी कैन राइट इसका सेंटर क्या है 0 0 एंड रेडियस r है. तो इन दिस केस दिस वुड बी द सर्कल. ये सेंटर हो गया 0 0 और ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे r, 0 0, r माइनस r, 0 एंड 0, -r. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r है, तो सेंटर डिपेंड करता है अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ पर है, उसी पॉइंट जहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू आए. और करना क्या है, x माइनस अल्फा को 0 पुट कर दें, y माइनस बीटा को 0 कर दें, तो इससे x और y की जो वैल्यूज आए वो पॉइंट हो जाएगा x, y, यानी अल्फा, बीटा क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. और उसको सेंटर लेके हम रेडियस r का एक सर्कल बना देंगे. बस देखना ये है कि ये सर्कल x एक्सिस को कहाँ कट करता है, y एक्सिस को कहाँ कट करता है. उसके लिए क्या करना होगा, x एक्सिस कहाँ कट करता है, उसके लिए y को 0 रख देंगे और y एक्सिस जहाँ कट रहा होगा वहाँ x को 0 करके सॉल्व कर देंगे, तो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे. तो दिस इज सिंपल केस ऑफ सर्कल्स. देन we can talk of straight lines. Straight lines are the easiest. Straight line का फॉर्म क्या होता है, a linear equation in x और y और both, यानी ax plus by plus c equals to 0. ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी. तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, you just need 2 points. तो एक बार x को 0 कर दीजिए, y के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, और एक बार y को 0 करके x के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, और वो दो जो पॉइंट्स आए, लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज बीटा. तो पॉइंट्स क्या है, 0 अल्फा एंड बीटा 0. इसको आप प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें इन दो पॉइंट से, तो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ और रादर कर्व ऑफ लाइन. अगर आपके कर्व में y इज इक्वल टू mx का फॉर्म है, मतलब कांस्टेंट पार्ट नहीं है, this constant part, that is no constant part, so your line would pass through origin से पास करेगी. अब इसमें दो केसेस हैं. अगर x का कोफिशिएंट, if कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, तो कैसे लाइन बनाएंगे आप, the line would be of this shape. The line would be of this shape. ऐसे जाएगी लाइन, y axis, x axis. और अगर if coefficient of x is negative, तो आपकी लाइन कैसे बनेगी, the line would pass in this way through origin. origin से तो पास करेगी, लेकिन ऐसे पास करेगी. This is x axis, y axis. अदर देन दैट अगर कुछ है तो दो पॉइंट्स निकालने आपको, एक बार x को 0 करके y निकाल दीजिए, एक बार y को 0 करके x निकाल दीजिए, और वो दो पॉइंट्स को मार्क करके उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए. नाउ वी टेक द केस ऑफ इलिप्स. इलिप्स के केस में वी हैव टू फॉर्म्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. a ग्रेटर देन b है, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स. इसी तरीके से अगर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस, या रादर वी शुड राइट हियर b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b, ये क्या केस हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स. और ये दोनों ही केसेस में सेंटर इसका क्या होगा, दोनों ही केसेस में सेंटर होंगे 0 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस इसकी एक्सिस होंगी. तो इस वाले केस में क्या बनेगा, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड केसेस. अगर इसके अलावा बहुत से केसेस, कोई भी कर्व हो सकता है, तो उन केसेस में देन यू विल हैव टू फॉलो द कर्व ट्रेसिंग के रूल्स. पर ये स्टैंडर्ड है, तो ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको स्ट्रेट अवे बन सकते हैं. दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड दिस इज वर्टिकल फॉर्म. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बहुत आराम से निकाल सकते हैं. ये कर्व x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0 होगा, तो y को 0 रख दीजिए.
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स कम्स आउट टू बी प्लस माइनस ए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए कॉमा 0, क्योंकि वाई तो 0 है, और ये हो गया माइनस ए कॉमा 0। द पॉइंट वेयर दिस कर्व कट्स दी वाई एक्सिस, तो क्या कर दीजिए, एक्स को 0 रख दें, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया बी स्क्वायर, तो वाई क्या आया प्लस माइनस बी। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी। नाउ मैंने ये जो बनाया दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, लग नहीं रहा है सिमेट्रिकल, बट सिमेट्रिकल बनाएंगे हम। सिमिलरली इस वाले में ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस सेंटर इज 0 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, जब वाई 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस बी, तो ये आ गया बी कॉमा 0 एंड माइनस बी कॉमा 0। सिमिलरली वो एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये कर्व, जहाँ एक्स 0 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट 0 ए एंड 0 माइनस ए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लेट्स से बस एक केस और ले लेते हैं हाइपरबोला का। तो अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कैसे होगा, दिस वुड बी द कर्व फॉर हाइपरबोला, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वुड बी पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा a कॉमा 0 और ये होगा माइनस a कॉमा 0। एंड इफ द कर्व इज, ठीक है बस इतना बहुत है। ये हाइपरबोला क्या हो गया, इलिप्स हो गया हमारा। देन वी हैव स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला। ये थोड़े से आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो रेगुलरली क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ये अगर आपको आते हैं तो इसमें हमें कर्व ट्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, स्ट्रेट अवे हम ड्रॉ कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशन, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अगर चेंज है तो।